So, Namaskaram students. Today we are going to discuss TDS related provisions. Again, because it is a practical session, we will be discussing only highlighted areas that we should be looking into once we do the assessment of any assessee from the tax audit perspective or from the statutory audit perspective. So we will be discussing only those sections which are more repetitive in nature, not all the sections of TDS. So before going and jumping and discussing the clause by clause or section by section analysis of TDS, let us develop the basic structure, why and how the TDS we should look into when we talk about practical life. So when I say TDS, so what exactly is the TDS, or what are the modes of tax collection for the government? So people, you should understand, whenever government say you earn in the previous year, and then we will assess in the assessment year, that doesn't mean that you have to pay tax in assessment year. No, that is not possible. If you are earning in the previous year, then you must pay tax also in the previous year. In assessment year, only your assessment will be finalized. And because people are earning money in the previous year, the recovery of tax becomes very difficult. Sometimes it is very challenging. People don't pay tax. People are tax evaders. तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि rather than asking tax from the person who is earning the money, let us start asking the money from the person who is paying the money. Let's say there is one company called X Limited, and X Limited is having around 25,000 employees. Now you tell me, for government of India, will it be difficult or easy to recover tax from 25,000 employees? 25,000 employees are earning money from X Limited. So you tell me, is it easy or difficult? Very difficult, because 25,000 employees are from different locations, they are having different addresses, and finding them will be challenging. But finding X Limited is very easy because it's a company. It is already under a lot of compliances, company law, tax audit, statutory audit, internal audit, so many things are happening. So what government said, we will not take tax from the employees. We should not take tax from the employees. We should take taxes from the employer. But sir, the employer is not responsible for the taxes, right? The person who is earning the money is employee. But they said, sir, person who is earning the money is employee, but person who is paying the money is employer. And यहाँ पे employer की responsibility बन जाएगी to deduct the tax before money reaches to the hands of the employee. क्योंकि इनको एक बार पता है कि एक बार employer ने employee को पैसे दे दिए, then employees, people are so careless that they are not going to pay tax to the government. So if somebody is earning 1 lakh rupees, assuming that his TDS or tax effective rate is 10%, employer, before giving this 1 lakh rupees to the employee, will deduct 10,000 from salary and will pay only 90,000 to the employee. This 10,000 rupees which was earned by employee will be paid to income tax in form of TDS. And this will happen on monthly basis. This payment will happen, or the payment will happen either on monthly basis or quarterly basis, but all these things will happen in the previous year itself. मतलब क्या है कि जब जब एम्प्लॉय पैसे कमाएगा तब तब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज का टीडीएस डिडक्ट करके या इफेक्टिव टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करेगा. Similarly, there are companies like Elite Gurukul Limited. Now in Elite Gurukul Limited, we have directors, we are having चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who are working for Elite Gurukul Limited. अब ये कंपनी जब भी ये पेमेंट करेगा, नाउ यू टेल मी, अगर ये पेमेंट 30,000 से ज्यादा होगा, ये पेमेंट इज मोर देन 30,000, तो 194J करके एक सेक्शन है प्रोफेशनल फीस के लिए, दैट विल बिकम एप्लीकेबल. तो इफ वी हैव टू पे समबडी 10 लाख रुपीज, तो हम 10 लाख रुपीज उनको देंगे ही नहीं. वी विल डिडक्ट द 10% TDS फर्स्ट ऑफ ऑल, that is 1 lakh rupees, and we will pay only net amount 9 lakh rupees to the people who are working with us professionally. This is how the whole TDS provisions will be applicable. So what is the TDS? TDS is nothing but a mode of recovery. Please understand, my dear friends, TDS is nothing but mode of recovery of tax. So whenever you learn any tax law, in India, you have to divide the tax law in 4 phases. Okay, any tax law, maybe GST, excise, VAT, income tax, any tax law for any country for that matter, you have to divide the tax law in 4 phases. Phase 1, you should always learn what is the levy.
आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज लेवी, मतलब क्या एग्जैक्टली टैक्सेबल है। यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर है, तो जीएसटी में चार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर है, एक्साइज में चार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर है, कस्टम्स में चार्ज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर है। वैसे इनकम टैक्स में चार्ज ऑब्वियसली इनकम टैक्स के ऊपर है, आप इनकम कमाओगे तो टैक्स लगेगी, तो दैट इज द चार्जिंग सेक्शन। इन फेज 2 यू शुड लर्न कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म। सो व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म, भैया क्या टैक्सेबल है वो तो समझ में आया कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्सेबल है, लेकिन सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे होगा, अलाउंसेस का टैक्सेबिलिटी क्या है, परक्विजिट का टैक्सेबिलिटी क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट की कंसिडरेशंस कैसे कंसिडर किए जाएंगे, देन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कंप्यूट होगा, बिजनेस का इनकम कैसे कंप्यूट होगा, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैसे कंप्यूट होगा, चैप्टर 6 के डिडक्शंस कैसे दिए जाएंगे। तो आई अज्यूम कि यू नो द लेवी ऑफ इनकम टैक्स, आई अज्यूम यू नो द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो इन दो फेजेस के ऊपर मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। देन वी विल कम टू फेज नंबर 3 एंड फेज नंबर 3 टॉक्स अबाउट माय डियर फ्रेंड कलेक्शन मैकेनिज्म। ना व्हेन आई से कलेक्शन मैकेनिज्म, इसका ये मतलब होता है कि भैया आपने क्या टैक्सेबल है वो तो समझ लिया, उसका कंप्यूटेशन भी कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कम होके गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, तभी तो टैक्स कंप्लीट होगा, राइट। तो देन देयर इज अ कलेक्शन मैकेनिज्म इन इनकम टैक्स। The collection mechanism is covered in 4 different mode. The first mode of income tax collection mechanism is TDS. Okay, the first mechanism is TDS, tax deducted at source. यहाँ पे जहां से आप पैसे कमा रहे हो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट करे और पे करे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मैंने आपको एग्जांपल दिया, एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। और अगर प्रोफेशनल आप किसी कंपनी में एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 194J का टीडीए डिडक्ट करना। आपने अगर किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है तो आपका जो टेनेंट है वो ओनर का टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो वी कॉल इट पेयर। यहाँ पे टीडीएस के सेक्शंस में पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हु इज द पेयर, पेयर इज द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। जो पैसे देता है उसका नाम पेयर होता है, जिसको पैसे देता है उसका नाम पेई होता है। तो टीडीएस के चैप्टर का पूरा ऑब्लिगेशन जो है वो पेयर के सर के ऊपर है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो आप अगर कोई भी व्हीकल आप जाके, अगर कोई भी व्हीकल जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है अगर आप डीलर से खरीदते हो तो डीलर जो होता है, जो सेलर जो होता है, ठीक है ना, जो डीलर है जो सेलर है वो आपसे 1% एक्स्ट्रा टीसीएस कलेक्ट करता है। आजकल जो मार्केट में बहुत फेमस चालू है और 1 जुलाई से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने टीसीएस लाया हुआ है 20% का। मतलब आप अगर इंडिया के बाहर अगर 100 लाख भेजना चाहते हो तो आपका 20 लाख तो यहाँ पे इंडिया में टीसीएस कलेक्ट होगा, मतलब इंडिया के बाहर खाली 80 लाख जा सकता है अभी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेलर, seller who sell the foreign currency, seller who sells the motor vehicle, seller who sells the alcoholic liquor, seller who sells tendu leaves। तो ऐसे कुछ सेलर्स है जो गवर्नमेंट ने पकड़ के रखे हैं, वो लोग टीसीएस निकालते हैं। आप लोग टीडीएस अगर समझोगे तो टीसीएस विल बिकम द बाय प्रोडक्ट ऑफ टीडीएस। तो आपको पहले टीसीएस समझना पड़ेगा। सर टीसीएस तो हमने भर दिया, और बहुत सारे सिचुएशन में तो टीडीएस है, ना टीडीएस लगता है ना टीसीएस लगता है, बट स्टिल पर्सन विल अर्न इनकम। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे। ओके, तो एडवांस टैक्स कौन भरता है भैया, एडवांस टैक्स तो टैक्स पेयर को ही भरना पड़ता है। यहाँ पे टैक्स पेयर कोई और है और पैसा कोई और डिपॉजिट कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, लेकिन एडवांस टैक्स उसी को भरना पड़ता है जिसने कमाया होता है। ओके, द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम, तो टैक्स पेयर विल पे द एडवांस टैक्स। और आप लोगों को पता ही होगा एडवांस टैक्स के 4 इंस्टॉलमेंट है, एंड आज का सेशन एडवांस टैक्स का है नहीं, फिर भी आपको पता हो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च पे आप लोगों को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। 15% ऑफ द लाइबिलिटी इन द फर्स्ट क्वार्टर, देन 45% ऑफ द लाइबिलिटी इन द सेकंड क्वार्टर, देन 75% ऑफ द लाइबिलिटी इन द थर्ड क्वार्टर एंड 100% ऑफ द लाइबिलिटी इन द लास्ट क्वार्टर ऑन 15 मार्च यू आर सपोज्ड टू पे एडवांस टैक्स। मुझे बताना क्या है आप लोगों को, गवर्नमेंट की ये 3 कलेक्शन मैकेनिज्म जो है टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, ये ऑपरेट होते हैं प्रीवियस ईयर में ही। इसका ये मतलब है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में ही रिकवर कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है।
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इनकम टैक्स का असेसमेंट असेसमेंट ईयर में होता है, लेकिन इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है वो प्रीवियस ईयर में ही हो जाता है। तो टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स इज ऑलरेडी कलेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। हाँ, उसमें अगर कुछ शॉर्ट अमाउंट बचा रहेगा, लाइक सम अमाउंट इज स्टिल पेएबल, या आपने टीडीएस, टीसीएस या एडवांस टैक्स के लॉ को फॉलो नहीं किया, तो आपको अल्टीमेटली टैक्स भरना पड़ता है एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसको हम एसे टैक्स बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एंड एसे टैक्स यू पे इन द असेसमेंट ईयर। आप प्लीज अंडरस्टैंड करो। तो एसे टैक्स जो होता है, द टैक्स विच इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, that you pay in the assessment year, लेकिन substantial part of the tax is already collected in form of either TDS, TCS और advance tax। इन 4 रिकवरी मोड में का हम आज चालू करने वाले TDS वाला रिकवरी मोड। सर, तो फेज 1 में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इनकम टैक्स के लेवी क्या है, टैक्सेबिलिटी क्या है। फिर आपको फेज 2 में कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है। फेज 3 में आपको कलेक्शन मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है, और कलेक्शन मैकेनिज्म में आपको TDS, TCS, एडवांस टैक्स, ये 3 जो मेजर है वो पढ़ने पड़ते हैं। अगर कोई किसी को अगर सेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, तो टीडीएस जो है वो सेक्शन 190 से चालू होता है और 206 AB तक चलता है। ओके, नाउ टीसीएस जो है वो सेक्शन 206C, इसका मेन सेक्शन तो 206C है, फिर CC, डबल CC, A, ऐसे और भी उसके इंटरनल सेक्शंस है, लेकिन जो मेन सेक्शन है वो 206C है। एंड एडवांस टैक्स जो होता है वो आपका चालू होता है इनकम टैक्स में सेक्शन 207 पे एंड 219 तक चलता है। ओके, तो 190 टू 206 AB में आपका टीडीएस चलेगा, तो टीडीएस की हम आज बात करेंगे। सर, फेज 3 की बात होने के बाद फेज 4 की बात आती है, विच इज द लास्ट फेज फॉर इनकम टैक्स, एंड दैट इज प्रोसीजरल लॉ। सर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजरल लॉ? प्रोसीजरल लॉ मतलब सर टीडीएस या टीसीएस की जो स्टेटमेंट होती है वो आपको क्वार्टरली भरनी पड़ती है। जैसे आपने जीएसटी का कल के सेशन अटेंड किया, तो जीएसटी में स्टेटमेंट जो होती है, जीएसटी में रिटर्न जो फाइल होते हैं वो मंथली बेसिस पर होते हैं। आइडियली एक्सेप्शनल्स आर देयर, लेकिन जो रेगुलर एसएससी हम उसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर एसएससी का मंथली बेसिस पे फाइलिंग होता है। तो टीडीएस, टीसीएस का जो फाइलिंग होता है, फाइलिंग पेमेंट तो मंथली बेसिस पे भी होता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी होता है, बट फाइलिंग जो है दैट हैज टू बी डन ऑन क्वार्टरली बेसिस। एंड फिर सर टीडीएस, टीसीएस का तो आपने प्रोसीजर पढ़ लिया। फिर सर इनकम टैक्स रिटर्न करके अपने को कुछ भरना पड़ता है, आईटीआर, रिटर्न ऑफ इनकम और आईटीआर, इनका जो फाइलिंग होता है वो एनुअल बेसिस पर फाइलिंग होता है। सर यहाँ पे हमारे एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट सर उस दोनों रिटर्न्स को, टीडीएस, टीसीएस या आईटीआर के रिटर्न को इवेल्युएट करता है, और इवेल्युएट करके डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन देता है। इंटीमेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटीमेशन। इंटीमेशन इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू द असेसी, जिसमें अगर उसका कुछ अगर कैलकुलेशन एरर होगा या अरिथमेटिकल एरर हम बोलते हैं, कोई एरिया उसने कवर अप नहीं किया होगा, तो डिपार्टमेंट कवर अप करके रिकैलकुलेट करके आपको इंटीमेशन इश्यू करता है। सो फॉर एज टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर इज कंसर्न, बहुत बार ऐसे होता है कि असेसी टैक्स लेट पे करता है, और लेट पे करने की वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना होता है। तो असेसी पेड टीडीएस विदाउट पेइंग इंटरेस्ट, तो जब उसका इंटीमेशन इश्यू होगा तो इंटीमेशन में इंटरेस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट करके इश्यू होता है, तो उसके लिए इंटीमेशन आपको समझ में आना चाहिए। सर, इंटीमेशन के बाद कभी कभी एसएससी को नोटिस भी आते हैं, दुनिया भर के इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, रीअसेसमेंट के नोटिस या रिटर्न फाइल करने के नोटिस या एडिशनल इंफॉर्मेशन के नोटिस। डेफिनेटली पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई टू द नोटिस। सर, नोटिस हो गया, असेसमेंट हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट आपको असेसमेंट ऑर्डर इश्यू करता है। ओके, लॉट ऑफ टाइम असेसमेंट ऑर्डर्स विल बी इश्यूड। तो असेसमेंट ऑर्डर कैसे इश्यू है, इश्यू होंगे, अलग अलग टाइप के क्या असेसमेंट ऑर्डर होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सर, असेसमेंट ऑर्डर अगर एसएससी के अगेंस्ट आया, अगर एसएससी खुश नहीं है असेसमेंट ऑर्डर से, तो एसएससी के पास रार का ऑप्शन होता है, रार। ओके, तो व्हाट इज रार सर? रार मतलब पहले तो एसएससी को रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सर, रेक्टिफिकेशन नहीं करना चाहता तो अपील कर सकता है, और अपील नहीं करना चाहता तो रिवीजन कर सकता है। व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन, अपील एंड रिवीजन, ये सारे भी चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड देन लास्टली अगर प्रूव होता है कि एसएससी गलत था और एसएससी ने गलत किया है, तो डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर पेनाल्टीज लगाता है, और बहुत ज्यादा अगर कुछ गलत किया होगा, जहां पे बहुत ही सीवियर लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट वांटेड टू मेक एन एग्जांपल, तो फिर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है।
ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन में क्या होता है कि आपको इम्प्रिजमेंट हो जाती है, जेल हो जाती है। ओके, तो जेल कितने टाइम की होगी, क्या होगी, वो आपको समझ में आना चाहिए। सो फॉर एज पेनाल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन इज कंसर्न, टीडीएस की पेनाल्टी जो होती है वो 100% होती है। अगर आपने टीडीएस प्रॉपरली डिडक्ट करके नहीं डिपॉजिट किया, एंड अगर आप लोग प्रूव हो जाते हो कि आप एआईडी हो, एआईडी का नाम मतलब होता है सीआईडी नहीं, एआईडी, एआईडी का नाम होता है असेसी इन डिफॉल्ट। अगर आपको डिपार्टमेंट ने असेसी इन डिफॉल्ट प्रूव कर दिया है तो डिपार्टमेंट विल इंपोज 100% पेनाल्टी ऑन यू। एंड प्रोसिक्यूशन की अगर बात करूं, अगर टीडीएस अगर टाइम पे नहीं भरा तो 3 मंथ से लेके 7 ईयर तक का आपको जेल हो सकता है टीडीएस के चैप्टर में। ओके, तो बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन डिटेल, तो एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो असेसी को अगर आपको डराना होगा तो बता दो सर, ज्यादा नहीं, एक तो 1 करोड़ का टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया तो वो 1 करोड़ तो गवर्नमेंट ले ही लेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले लेगा, 100% उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगा देगा। और कुछ नहीं सर, आपको 3 महीने से 7 साल तक गवर्नमेंट वेकेशन देगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड अकोमोडेशन फंडेड बाय गवर्नमेंट होता है सर, ठीक है ना। आपको आराम करना होता है बस। ओके, उठा के भी वही लेके जाते हैं, खाना पीना भी वही खिलाते हैं और रूम भी आपको रहने के लिए वही देते हैं। तो दीज आर दी प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। तो लॉ कितने फेज में पढ़ना है आपको, लेवी में 4 फेज में लेवी, सेकेंड फेज में कंप्यूटेशन, थर्ड फेज में कलेक्शन, फोर्थ फेज में प्रोसीजरल। तो मैंने फेज 1 और फेज 2 की बात नहीं करनी है आज, मैं डायरेक्टली बात स्टार्ट कर रहा हूं फेज 3 की, बिकॉज दैट इज समथिंग प्रैक्टिकल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो नेक्स्ट अब मैंने आपको 2 बातें बताई, एंड आई विश कि आप लोग जो आए हो सुबह सुबह उठ के बिना मतलब के, तो थोड़ा लिख भी लोगे तो अच्छा हो जाएगा। लिखने का प्रयास कीजिए, देखिए ट्राई कीजिए, हो सकता है तो क्या है ना, कुछ कुछ चीजें लिखोगे तो याद रहेंगी, नहीं तो सत्संग में आए हो ऐसे तो आ ही जाते हो तुम लोग। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड समवन पर्सन कॉल्ड पेयर। ओके, तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, पेयर, और सामने कौन होता है, पेई। ये 2 लोग होंगे तो ही टीडीएस का चैप्टर ऑपरेट होना चालू होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड पेयर एंड पेई। पेयर को इनकम टैक्स के लॉ में डिडक्टर भी बोला जाता है। इसका नाम क्या है, डिडक्टर। तो इसका नाम क्या होगा, डिडक्टी होगा। पेयर का इनकम टैक्स में आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, पेयर का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको हम बोलते हैं टीडी कैन। और पेई का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, पैन। तो इसको टैन बोलते हो तुम लोग, लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टीडी कैन का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। मुझे आप लोगों को पूछना क्या है, जरा वो समझो कि मुझे बताओ पैसे कमाता कौन है, हु हैज अर्न द इनकम, पेयर की पेई, पेई। तो इनकम टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेई की है। पूरे इनकम टैक्स में जब आप बात करते हो कि असेसी असेसी, असेसी को नोटिस आएगा, असेसी को पेनाल्टी लगेगी, असेसी को जेल होगी, तो असेसी का मतलब पेई होता है, क्योंकि पेई पैसे कमा रहा है। लेकिन टीडीएस के चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स हो चुकी है। दिस इज द ओनली चैप्टर जब आप बोलते हो कि असेसी, इस चैप्टर का जो असेसी होता है वो पेई नहीं होता, इस चैप्टर का असेसी कौन है, पेयर है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शनल पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर मेरा टीडीएस एलिट गुरुकुल ने नहीं काटा तो मुझे नहीं कुछ होने वाला, पेनाल्टी किसको लगने वाली, मैंने पैसे कमा लिए लेकिन मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो प्रॉब्लम किसको होने वाला है, एलिट गुरुकुल को। क्यों सर, यहाँ पे जब एआईडी में नाम लिखा जाएगा, असिस्टेंट डिफॉल्ट बोला जाएगा, तो वो असिस्टेंट डिफॉल्ट पेई नहीं होता, वो असिस्टेंट डिफॉल्ट पेयर होता है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली असिस्टेंट डिफॉल्ट को डीम्ड टू बी असिस्टेंट डिफॉल्ट बोलते हैं, मतलब डिपार्टमेंट मान लेता है कि तू डिफॉल्टर है, अगर टीडीएस नहीं काटा होगा तो डीमिंग फिक्शन लग जाता है यहाँ पे। ओके, तो एक मैंने बात बता दी। तो पेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पेयर के ऊपर ओनर्स होता है। अब पेयर क्या, पेयर इसका नाम पेयर है, इसका नाम पेई है क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या होंगे, इन दोनों के बीच में क्या हुए रहेंगे, ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे। अब मुझे बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे जिसके लिए पेमेंट गया होगा ना, यहां से यहां क्या गया होगा, पेमेंट, मतलब पेई ने पेयर को सर्विसेज दिए होंगे,
पेई ने पेयर को सर्विसेज दिए होंगे। कौन से सर्विसेज? सर इसके लिए जॉब किया होगा तो इनको एम्प्लॉय बोलेंगे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे, इसके लिए अगर पेई ने अगर मुझको पेई अगर ओनर है, मालिक है बिल्डिंग का, ठीक है ना, तो उसने मुझे अपनी जगह यूज करने दी, ठीक है ना, तो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी उसने दिया, मतलब कुछ ना कुछ उसने मुझे दिया होगा तो मैं उसको पेमेंट दे रहा हूं, ठीक है ना। अब पेमेंट जब दिया जा रहा है यहां से, पेयर से पेमेंट किसको दिया जा रहा है? पेई को, तो टीडीएस डिडक्ट होगा। आप लोगों को पहले तो क्या समझ में आना चाहिए, ये जो पेमेंट है ये बिजनेस पेमेंट होंगे कि पर्सनल पेमेंट होंगे? बताओ। पेयर ने जो पेई को पेमेंट किए, रेंट, इंटरेस्ट, जो भी है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ये बिजनेस होने चाहिए कि पर्सनल होने चाहिए? आइडली 99% बिजनेस की होंगी। पर्सनल पेमेंट के ऊपर कहां से टीडीएस लगने लगा? लेकिन पूरे टीडीएस के सेक्शन में ऐसा किधर भी नहीं बोला है कि ये बिजनेस पेमेंट ही होना चाहिए, ओके। लेकिन दो सेक्शन में बोला है कि अगर पर्सनल पेमेंट होगा तो वो दो सेक्शन नहीं लगते, और वो है 194C और 194J। 194C कॉन्ट्रैक्ट का और 194J प्रोफेशनल्स का। वहां पे ये बोला गया है कि अगर पर्सनल होगा तो ये दो सेक्शन नहीं लगेंगे, और ऐसा बाकी किसी सेक्शन में नहीं बोला। इसका क्या मतलब होता है? बाकी सारे जो सेक्शंस है वो पर्सनल के ऊपर भी लग सकते हैं, लगने ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सक्लूजन नहीं दिया तो इंक्लूजन है। तो ये मैंने दो बातें आपको प्रैक्टिकल है जो मैंने बता दी। हाँ, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनका हम ऑडिट करने वाले अभी अगले महीने से, तो उनका तो डेफिनेटली सारे के सारे कौन है? हमारे बिजनेस वाले ही रहेंगे। लेकिन विजय माने आपको बताएंगे फिर कि सर एक तो जॉब वाला बंदा है, उसका भी हम टीडीएस काटते हैं 194 आईबी में। कहां पे कटता है वो? 194 आईबी में रेंट का होता है। तो एक्सेप्शनली उसके लिए तो क्या है? पर्सनल पेमेंट हो गया ना। अरे कोई जॉब पे जा रहा है, घर पे रहता है, तो उसके लिए वो कौन सा पेमेंट हो गया? पर्सनल पेमेंट हो गया। पर्सनल पेमेंट के ऊपर भी टीडीएस लगता है। मुझे खाली इतना ही बताना है कि आज की तारीख में आप क्या याद रखो, पेमेंट पर्सनल भी हो सकती है और पेमेंट बिजनेस भी हो सकती है। दो सेक्शन है जो बोलते हैं कि पेमेंट बिजनेस की होनी चाहिए, 194C एंड 194J। चलो, तो यहां से यहां पे क्या क्या जा सकता है? तो मैंने बताया साहब, यहां से यहां सैलरी जा सकता है, सैलरी जा सकता है, और क्या जा सकता है? रेंट जा सकता है, बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जा सकते हैं, प्रोफेशनल फी जा सकता है ना, प्रोफेशनल फी जा सकता है, और क्या? कमीशन जा सकता है ना, ये कॉमन एक्सपेंस है ना, आपके बुक्स में ये कॉमन होते हैं। इंटरेस्ट जा सकता है, ओके, पेयर से पी के बाद ये सारी जा सकते हैं। तो सैलरी जाएगा तो सेक्शन जाता है 192, रेंट जाएगा तो सेक्शन लगता है 194I, कॉन्ट्रैक्ट जाएगा तो सेक्शन लगता है 194C, प्रोफेशनल जाएगा तो 194J, कमीशन जाएगा तो 194H, इंटरेस्ट जाएगा तो 194A। ऐसे हर पेमेंट के लिए क्या किया गया, उन्होंने अलग अलग पेमेंट्स के लिए सेक्शंस बनाए गए हैं। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ओके, पानी पीला बनता है। ये विकास आया क्या भाई? लेट आएगा। ओके, आगे चलो। नाउ वंस यू अंडरस्टूड कि हाँ यार अलग अलग सेक्शंस अलग अलग जगहों पे लगते हैं, तो आपकी ऑडिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिर आप जब ऑडिट पे जाओगे, ठीक है ना, तो कोई भी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट होने दो या टैक्स ऑडिट होने दो या इंटरनल ऑडिट होने दो, आप लोगों का, आप जब ऑडिट करते हो तो फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो, और फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। आप अभी चेक करने वाले हो कंप्लायंस ऑफ टीडीएस चैप्टर। क्या चेक करने वाले हो? कंप्लायंस ऑफ। तो आप मेनली कहां फोकस करोगे, बैलेंस शीट के ऊपर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या होता है? इनकम। जब आप टीडीएस का कंप्लायंस चेक कर रहे हो तो एक्सपेंस साइड देखोगे कि इनकम साइड?
बताओ, एक्सपेंस साइड। क्यों? क्योंकि टीडीएस का कंप्लायंस कौन करता है? जो पैसे कमा रहा है वो उसको करना है, या जो पैसे पे कर रहा है उसको करना है? पे करना है, मतलब पेमेंट के ऊपर लगता है ना। तो पेमेंट्स मतलब पेयर भैया, पेयर मतलब खर्चा। तो यहां पे अगर तुमको दिखा टू सैलरी, क्या दिखा आपको? होता ही है ना, क्या होता है यहाँ पे? टू सैलरी। तो आपके मन में इमीडिएटली क्या आना चाहिए? इधर को क्या, कौन सा सेक्शन चेक करना है? 192। यहाँ पे दिखा टू कमीशन 194H, यहाँ पे दिखा टू इंटरेस्ट, तो क्या चेक करना है? 194A। यहाँ पे दिखा टू रेंट 194I। यहाँ पे दिखा टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता ना, कॉन्ट्रैक्ट करके पेमेंट नहीं होता। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा, टू व्हाट यू से ट्रैवल एजेंसी का होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का होगा, एनुअल मेंटेनेंस होगा। तो देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट्स है इन शॉर्ट, ठीक है ना। आपने दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट दिए होंगे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको क्या चेक करना है? 194C। आपको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? चेक करने मतलब मुझे पूछना क्या है आप लोगों को? यू नीड टू चेक व्हाट इज नॉन कंप्लायंस, राइट? कि कहां पे क्या हुआ है? नॉन कंप्लायंस हुआ है। नॉन कंप्लायंस उसी को समझेगा, किसको? जिसको कंप्लायंस पता होगा ना भैया। आप लोगों को अगर कंप्लायंस पता होगा, आपको अगर लॉ पता होगा, तभी तो आपको ये दिखना चालू होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है? नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो कंप्लायंस समझने के लिए आप लोगों को टीडीएस का चैप्टर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं नहीं बता रहा हूं कि रट लो, एग्जाम दे रहे हो तो रटना पड़ेगा, लेकिन अगर कम से कम आप काम कर रहे हो तो आपके पास टीडीएस का चार्ट होना चाहिए कि आप कम से कम 10 ऑडिट जब करोगे टीडीएस के, तब आपको सेक्शन से याद होना चालू हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो टीडीएस के सेक्शन 30+ है, लेकिन काम में खाली 10-15 ही आते हैं। तो 10-15 सेक्शन याद रखना मुझे नहीं लग रहा बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, अगर वो भी आपने बार बार रिपीटेटिवली काम किया है तो आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम। मैं जो टीडीएस की बात कर रहा हूं ना, मैं पर्सन अर्निंग की बात नहीं कर रहा। मैं कौन से पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं? जो पेयर है, जिसको टीडीएस का चैप्टर एप्लीकेबल है। डिडक्टर की हम बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? डिडक्टर की। हम डिडक्टी की बात नहीं कर रहे, हम एम्प्लॉई की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। तो पैसा कौन कमा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हम, पैसा जो खर्चा कर रहा है हम उसकी बात करें। पहले तो बात किसकी कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो टीडीएस के चैप्टर में आपका जो असेसी है वो एक बिजनेस एंटिटी है, एक पर्सन है जो ये एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है। और क्योंकि ये एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, इसके टीडीएस के एप्लीकेशन को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट वी आर डिस्कसिंग दिस, ओके। तो फिर से मैं जाता हूं मेरे ओरिजिनल चार्ट में। तो भैया ये पेयर है और ये पेई है, इतना तो आपको समझ में आया कि पेयर पेयर पेई को कुछ ना कुछ पेमेंट करता होगा, क्योंकि पेई ने पेयर को कुछ ना कुछ सर्विसेज दिए होंगे या कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे। तो अभी हमें बात क्या करनी है इन दोनों के नीचे? यहां पे मुझे क्या लिखना है कि बताओ सर, एक जो बात है, जो आप लोग नालायक लोग बहुत लाइटली लेते हो एक शब्द को, एंड दैट वर्ड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो दोनों लोगों की क्या है? कुछ ना कुछ टीडीएस के चैप्टर में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सो फार एज टीडीएस डिडक्टर इज कंसर्न, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है साहब इनकी पेयर की? रेस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस अगर एप्लीकेबल है तो क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे पूछना क्या है, टीडीएस डिडक्ट करना ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? पक्का? लेकिन तुम लोग ऑप्शनल की तरह इसको यूज करते हो। कर लिया कर लिया, नहीं कर लिया नहीं किया। सिग्नल अगर रेड है तो रुकना चाहिए कि जाना चाहिए? मतलब रुकना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? नहीं, लीगली बात कर रहा हूं, लीगली मैंडेटरी है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग नहीं रुकते। बस यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सारे असेसी तो डिडक्ट ही नहीं करते। कुछ कुछ लोगों के पास तो बदनसीब लोग हैं, उनके पास बीकॉम एमकॉम वाले अकाउंटेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बीकॉम एमकॉम वालों से मुझे, खाली उन्होंने टीडीएस का चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा होता है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम है।
अब जो अकाउंटेंट है उसको ही टीडीएस नहीं आता तो वो तो डिडक्ट करेगा ही नहीं। अकाउंटेंट ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फेथ है कि अकाउंटेंट नालायक है उनको पता है, फिर वो फेथ, सेकंड फेथ किसके ऊपर है? पहला फेथ तो बिजनेसमैन के ऊपर था, लेकिन बिजनेसमैन को ये सब नहीं पता, तो बिजनेसमैन ने क्या रखा? अकाउंटेंट रखा। आर्ट्स वाला नहीं रखा, साइंस वाला नहीं रखा, इंजीनियर नहीं रखा, कॉमर्स वाला रखा। लेकिन उस नालायक ने टीडीएस ऑप्शन में छोड़ा था, तो अकाउंटेंट ने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया। बिजनेसमैन को नहीं पता कि डिडक्ट किया है कि होता भी है कि नहीं होता, उसको तो कुछ भी नहीं, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चेक करना कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं? सीए की होती है, ऑडिटर्स की होती है। वेरी गुड। और जो सीए है वो तो रोज काम करता नहीं है, तो सीए किसके ऊपर भरोसा करता है? आर्टिकल्स के ऊपर करता है। मतलब तुम समझ रहे हो, देश के सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस जो बिजनेसमैन को लगते हैं, बिजनेसमैन ने भरोसा किया अकाउंटेंट के ऊपर। अकाउंटेंट ने भरोसा किया कि मेरी कोई गलती हुई रहेगी तो सीए पकड़ लेगा। सीए ने भरोसा किया आर्टिकल के ऊपर। मतलब टीडीएस का कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस देश में होगा या नहीं होगा, ये आर्टिकल लोगों के हाथ में है। और ये एक हरामी कम्युनिटी है, ठीक है ना? बीकॉम एमकॉम वाले अच्छे होते हैं, कम से कम वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनको नहीं आता, क्योंकि वो बेशरम भी होते हैं। नहीं आता, आप उनको पूछोगे करोगे टीडीएस का काम? नहीं आता ही, सीखो नहीं। लेकिन ये सीए कम्युनिटी जो होती है, सीए कम्युनिटी के आर्टिकल होते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं कि उनको आता बहुत कुछ है। कम से कम एक्टिंग तो करनी पड़ती है कि आता है, उसका प्रॉब्लम है। तो आपको नहीं आता तो बोलो कि नहीं आता, नहीं आता तो सीख लो। एक बार नहीं, 2 बार सीखो, 4 बार सीखो, लेकिन क्लाइंट लोगों की वाट मत लगाओ, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग तो डेढ़ शानी भी होते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं टीडीएस, लेकिन सेकंड जो है बोलते डिडक्ट केला ना, डिडक्ट हो गया, डिडक्ट हो गया, तुम्हारे बाप का पैसा थोड़ी ना क्या है, तो डिपॉजिट भी तो करना है, डिपॉजिट टीडीएस। लोग बोलते हैं हाँ जब पैसा आएगा तब डिपॉजिट करेंगे। ऐसा है कि ड्यू डेट के पहले डिपॉजिट करना पड़ता है? ड्यू डेट क्या है टीडीएस की? 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ, पहले 11 महीने के लिए। और मार्च का मंथ एंड 30 अप्रैल, ठीक है ना? तो डिपॉजिट टीडीएस वो बताता हूं, अलग अलग चीजों के अलग अलग ड्यू डेट है। तो सबसे पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिडक्ट करना है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिपॉजिट करना है। बस हो गया, काम खत्म। जब आप डिपॉजिट करते हो तो बताते हो क्या किसका टीडीएस डिडक्ट किया है? पर्सन का नाम बताते हो क्या, किसका, कौन पेई था? जब डिडक्ट एंड डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट में तो पैसे जाते हैं ना गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये पैसे किसके हैं, किसका आपने टीडीएस काटा है? वो पता चलता है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो पैसे जाते हैं। अब 194C में आपके 150 कॉन्ट्रैक्टर है, तो 150 लोगों का टीडीएस यहाँ पे कटा होगा, तो 150 लोगों का 194C एक ही पेमेंट जाता है, बरोबर ना विजय? पेमेंट एक ही जाएगा, तो गवर्नमेंट को तो नहीं पता चलेगा ना कि पेमेंट किसका है, तो उसके लिए बताना पड़ेगा। मतलब क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न। तो तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं क्वार्टरली रिटर्न लिख रहा हूं जानबूझ के, वैसे तो मुझे क्वार्टरली स्टेटमेंट लिखना था खाली, लेकिन मैं जानबूझ के क्वार्टरली ऐड कर रहा हूं ताकि आपको रजिस्टर्ड हो कि टीडीएस के रिटर्न कैसे जाते हैं। हाँ, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। क्या फर्निश करना पड़ेगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ही आप प्यार से क्या बोलते हो? टीडीएस। इसी को ही तुम लोग क्या बोलते हो प्रैक्टिकल लाइफ में? टीडीएस रिटर्न, ठीक है ना? फोर्थ, खत्म, यहां पे खत्म हो जाता है क्या? अभी तो सब कुछ हो गया ना, डिडक्ट कर लिया, डिपॉजिट कर लिया, स्टेटमेंट भी भर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है कि अभी भी है? सैलरी का रिटर्न जब तुम अभी भरना चालू करे हो, क्या मांगते हो तुम अपने एसएससी से? फॉर्म 16 क्या है? कौन किसको देता है फॉर्म 16? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। वो क्या है फॉर्म 16? क्या है? प्रूफ ऑफ टीडीएस है। क्या है? प्रूफ ऑफ टीडीएस। अभी एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया ना, क्या प्रूफ है कि एम्प्लॉयर ने डिडक्ट करके डिपॉजिट किया? इसका क्या प्रूफ है आपके पास? तो कौन सा प्रूफ है?
फॉर्म 16 मतलब उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट इशू, सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट आपको पता है वो है फॉर्म 16। तो खाली 16 नहीं होता, और भी होते हैं, ठीक है ना। और कौन से होते हैं? फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C ऐसे होते हैं। लेकिन मेनली आपने जो देखा होगा वो क्या देखा होगा? फॉर्म 16। जो प्रोफेशनल्स को मिलता है उनको 16A मिलता है, ठीक है ना। फिर वो प्रॉपर्टी वगैरह वालों के लैंड वगैरह सेल किया होगा तो उसके आगे आगे के सेक्शंस वैसे एप्लीकेबल होते रहते हैं। लेकिन 16 एंड 16A इज वेरी फेमस वन इन मार्केट, ठीक है ना। तो ये हो गया इशू करना है। लेकिन ये किसको किससे इशू करना है? बाय पेयर टू पे। अच्छा, ये फॉर्म जो सर्टिफिकेट होता है वो डीटीपी में बना के आप पीडीएफ में एडिट करके भेजोगे कि डाउनलोड करके देना होता है इनकम टैक्स से? डाउनलोड करके देना होता है। मतलब फॉर्म 16 आपको बना के देना होता तो वर्ड फाइल में आप बना के कुछ भी दे सकते हो प्रूफ। ये बना के नहीं देना होता, पोर्टल से डाउनलोड करके देना होता है। ओके, तो यहां तक बातें क्लियर है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई बताओ? पेयर की, ठीक है ना। पे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पेई की क्या रिस्पॉन्स, अगर आप पेई हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी भी कुछ होनी चाहिए ना। नहीं, ज्यादा नहीं, वो तो ठीक है, वो तो 192 में खाली। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फर्निश पैन। टीडीएस का चैप्टर क्यों लाया गया था? कौन चोर था? पेयर चोर था कि पेई चोर था? पेई चोर था ना। मतलब जो पैसे कमा रहा था वो गवर्नमेंट को दिखा नहीं रहा था कि मैं पैसे कमा रहा हूं, इसलिए टीडीएस का चैप्टर लाया गया। रिवर्स चार्ज जैसा है ना, कि चलो जो पैसे कमा रहा है वो नहीं दिखा रहा है, कम से कम जो खर्चा कर रहा है वो तो दिखाएगा ही। एक्सपेंस तो सब सब दिखाते हैं, इनकम छुपाते हैं, खर्चा तो सब लोग बुक करते हैं। इसलिए पेयर के ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी। अब पेई बोलता है हाँ ठीक है जो टीडीएस डिडक्ट करना है कर लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं पैन नहीं दूंगा। 1% डिडक्ट कर लो। 194C में टीडीएस ही कितना लगता है? 1%। 194H में टीडीएस कितना लगता है? 5%। हाँ ठीक है, कर लो, डिडक्ट कर लो। इनकम टैक्स के रेट कितने हैं? 30% वाले भी रेट है, ठीक है ना। तो बोलते हैं हाँ तुमको जो टीडीएस डिडक्ट करना है कर लो, डिपार्टमेंट को भर दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना पैन नहीं दे रहा। पैन क्यों नहीं देता है? हाँ बताओ ना, पैन क्यों नहीं देता? पता चलता है, ठीक है ना। ये जो ब्लैक कमाने वाले लोग हैं, ब्लैक वाले, काला धन वाले जो लोग हैं, वो ये पटपेड़ी या कोऑपरेटिव में अकाउंट क्यों खोलते हैं? क्योंकि वहां पे विदाउट पैन अकाउंट ओपन होता है। आप नॉर्मल बैंकिंग कंपनी में जाओगे, विदाउट पैन अकाउंट नहीं ओपन होगा। लेकिन ये पदपेढ़ी में क्या होता है, या ये कोऑपरेटिव छोटे छोटे बैंक जो रहते हैं, निधि कंपनी में भी आपने ऑडिट किया था तो आपको पता चला होगा कि कुछ लोग क्या नहीं दे रहे? पैन नहीं दे रहे। पैन क्यों नहीं देता इंसान? पैन क्यों छुपा के रखता है अपना? ताकि उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो उस अकाउंट पे रिकॉर्ड ना हो, और वो चाहता नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो पता चले कि इसने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हुए। तो हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी पे रखा है, चॉइस दिया है कि हमने उसको। व्हेन आई यूज द वर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम आई रिक्वेस्टिंग? नहीं, इट इज अ मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी है भाई, तुझको पैन देना पड़ेगा। लेकिन बातें तो वही है कि आप लोगों को हम बोलते हैं कि रोज पढ़ाई करो, मेडिटेशन करो, ट्रेनिंग लो, काम करो, ध्यान दो, ये करो, सुबह जल्दी उठो। आप लोग क्या बोलते हो? नहीं किया तो ना, पापा बोलते हैं बेटा बॉयफ्रेंड मत रख, इट इज टू अर्ली टू हैव अ बॉयफ्रेंड। आप क्या बोलते हो? रखा। तो बच्चों को बोला जाता है, बॉयज को, लेट नाइट तक बाहर घूमो मत, दारू पियो मत, सिगरेट पियो मत। तुम लोग क्या बोलते हो? पिया। तो तो वैसे ही मैं भी बता रहा हूं, आप पे ही हो, आप पैसे कमा रहे हो, क्या कर लो? पैन फर्निश करो। आपके मन में क्या आना चाहिए? नहीं किया तो गवर्नमेंट कुछ तो करेगा। तो गवर्नमेंट आपका, अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, ठीक है ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? ठीक है ना। अगर आपने पैन नहीं दिया तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फर्निशिंग पैन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फर्निशिंग पैन, ठीक है ना। तो क्या लगेगा सर? आपका टीडीएस जो है अभी हाइयर रेट पे कट होगा। डिडक्शन एट हाइयर रेट, डिडक्शन एट हाइयर रेट, ठीक है ना। सर हाइयर रेट पे टीडीएस कटेगा,
उसके भी 2 सेक्शन है अभी। ओहो, उसके भी 2 सेक्शन हो गए, ठीक है ना। जो पहला सेक्शन है उसका है सेक्शन 206 डबल ए, और दूसरा सेक्शन है उसका 206 ए बी। 206 डबल ए एंड 206 ए बी, ठीक है ना। ये 2 सेक्शन हो गए। सर ये फाइलर का है, फाइलर मतलब जो आईटीआर भरते हैं उन लोगों के लिए ये सेक्शन लगता है कि उन्होंने आईटीआर भरा हुआ है, और ये नॉन फाइलर को लगता है। नॉन फाइलर करके एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। इनकम टैक्स में देयर आर पीपल हु आर कॉल्ड एज नॉन फाइलर, ठीक है ना। नॉन फाइलर वो लोग आईटीआर भी नहीं भरते। आईटीआर क्यों नहीं भरता इंसान? अगेन वो कौन है? टैक्स का चोर है। आईटीआर कौन नहीं भरता देश में? जिसको टैक्स की चोरी करनी है ना, टैक्स इवेडर आईटीआर नहीं भरता, तो उसको ज्यादा पनिश करना पड़ेगा ना। तो सर अगर ये आईटीआर भर रहा है, पहला वाला पर्सन कम से कम आईटीआर भर रहा है, तो सर उसको टीडीएस क्या लगेगा? तो उसको टीडीएस लगेगा मिनिमम 20% पे। मतलब जहां पे 1% डिडक्ट होना था वहां पे कितना डिडक्ट होगा? 20% पे डिडक्ट होगा। फिर कुछ लोगों लॉटरी पे टीडीएस कितना रहता है? लॉटरी पे ड्रीम 11, 3 पत्ती, ये जो ऑनलाइन गेम वगैरह होते हैं, या अभी ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे कितना है? 30% है। तो वो तो खुश हो जाएगा ना, अरे रे रे रे, पैन दे दूंगा तो 30% लगेगा, पैन नहीं दूंगा तो 20%। अरे तो मैंने नहीं बोला 20%, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर भी है यहाँ पे, टीडीएस रेट। मतलब भैया जो रेट है टीडीएस का वो भी कंपेयर करना है आपको, 20 भी कंपेयर करना, टीडीएस रेट भी करना। और तीसरा, फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट क्या होता है? फॉरेन कंपनी का 40%। अरे फॉरेन या नॉन रेसिडेंट का टैक्स का रेट कितना होता है? 40% का भी रेट। मतलब कभी कभी क्या होगा, रेट इन फोर्स ज्यादा होगा। रेट इन फोर्स का मतलब समझता है क्या आपको? जो एप्लीकेबल टैक्स का रेट है, जिस जिस रेट पे उसका टैक्स कटना है, टैक्स भरेगा वो, तो उसको बोलते हैं रेट इन फोर्स, ठीक है ना। इन तीनों में का विच एवर इज हाइयर, रामबान मारने का ऐसा इधर, विच एवर इज हाइयर। मतलब 20 मिनिमम होता है, 20 नहीं होता। वो सारे बच्चे क्या बोलते हैं, पैन नहीं दिया तो टीडीएस कितने पे कटेगा? 20 पे कटेगा। गवर्नमेंट ने 20 नहीं बोला, गवर्नमेंट ने बोला 20, या टीडीएस का रेट या रेट इन फोर्स विच एवर इज हाइयर। ये समझ में आया आपको? हाँ, तो ये सेक्शन मुझे आप लोगों को 206 डबल ए पढ़ाने दो बुक में से एक बार आपकी रीडिंग हो जाती है तो मेरा मैटर सॉल्व हो जाता है। इसका पेज नंबर क्या है? 206। देखो सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन का लैंग्वेज देखो, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग पैन। मैंने क्या बोला, ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? मैंडेटरी है ना। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग द पैन, बिल, वाउचर, ये सब कुछ है। कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं हम? 206 डबल ए। सर अगर डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो रेट प्रिस्क्राइब इन द एक्ट, मतलब टीडीएस के रेट, ठीक है ना। रेट इन फोर्स, रेट इन फोर्स मतलब फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट मतलब टैक्स के रेट। और क्या उन्होंने बोला? 20%, विच एवर इज हायर। सर ये 5% 2 केसेस में लगता है। 20% का क्या किया उन्होंने? रिप्लेस किया है 5%। और ये दोनों के दोनों गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर है, मेजरली किसके ऊपर है? गुड्स, क्यू और ओ, बाद में बात करेंगे। तो आप भी यहाँ पे जहां पे आपने लिखा है ना अभी 20%, वहां पे क्या कर दो, ब्रैकेट में कितना रख दो। कभी कभी 5% भी होता है, 2 सेक्शंस में 5% है। कौन से दो? 194 क्यू और 194 ओ। 194 क्यू और 194 ओ में 5% लगता है अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो। ऑल राइट, थोड़ा थोड़ा समझो, इंस्टॉलमेंट में समझो, पूरा एक बार डाइजेस्ट कर। टीडीएस ऐसा चैप्टर है जो वन शॉट नहीं जाएगा अंदर, इट टेक्स टाइम। टीडीएस का चैप्टर आपको 15 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, 15 लेस देन 15 आपको नॉलेज नहीं मिलेगा इसका। इस दैट काइंड ऑफ चैप्टर मिनिमम 15 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, 15। ओके, तो दिस माइट बी द राउंड 1 फॉर यू, और फॉर सम पीपल इट माइट बी राउंड 2। लेकिन थोड़ा 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 आपको धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ इट, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। चलो आगे चलता हूं। दूसरा अभी किसके लिए पढ़ना है हमें? नॉन फाइलर के लिए पढ़ना है ना।
तो पहले तो नॉन फाइलर का डेफिनेशन देखो, किसको बोला जाता है, नॉन फाइलर है, ठीक है ना। तो बहुत बार नॉन फाइलर कैसा होता है, तो जैसे पकड़ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है विश्वकर्मा फैब्रिकेटर। ये काम किसका करते हैं, फैब्रिकेशन का करते हैं, ठीक है ना। कोई एक बिल्डर है जो इनको पेमेंट करेगा ना, विश्वकर्मा फैब्रिकेटर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, बिल्डर करेगा पेमेंट। बिल्डर के लिए इसने कौन सा सर्विस दिया होगा, वो आयरन रॉड वगैरह लाए होंगे और ग्रिल बनाने का काम किया होगा, गेट बनाने का काम, मतलब जो लोखंड का काम होता है वो किया होगा, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। इनको क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डर को क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी। अपने टीडीएस के चैप्टर में इसको बोला जाता है पेयर, क्योंकि बिल्डर इनको पेमेंट करेगा और ये कौन होते हैं, पे। अब कितना परसेंट टीडीएस कटता है, 194C का रेट क्या है, कौन बताएगा। 194C का रेट कितना है, 1%। 1% क्यों बोला, क्योंकि विश्वकर्मा फैब्रिकेटर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एक इंडिविजुअल है। अगर वही कंपनी एलएलपी होती तो 194C में टीडीएस कितना कटता है, 2%। ओके, ये रेट याद रखो। चलो 1% कटना था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी वो थी 1 करोड़ रुपीज, ठीक है ना, मतलब 100 लाख की वैल्यू थी। 100 लाख का कितना डिडक्ट होगा, फिर 1 लाख डिडक्ट होगा, यहां तक समझ रहा है। लेकिन धंधे की मार्जिन 1% होगी क्या, या इतनी कम मार्जिन होगी क्या, नहीं। मान लेते हैं इनकी मार्जिन कितनी थी, 40% की थी, मतलब इसमें इन्होंने कितना कमाया हुआ है, 40 लाख कमाया हुआ है। 40 लाख का टैक्स कौन निकाल के दिखाएगा अपने को, 40 लाख का टैक्स कौन निकाल के दिखाता है, दिखता हूं मैं। कैलसी वगैरह चाहिए, दे दे पास कर जरा कैलसी। दिखाते हैं 40 लाख कमाता है तो देखते हैं कि टैक्स कितना लगता है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लग रहा है तो तुम लोग फेल हो पहले अटेम्प्ट में। कैसे करना होता है 40 लाख का टैक्स, कैसे करना होता है। 40 लाख का टैक्स अप टू, मानते हैं कि यही इनका इनकम है, 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, तो वो कितना होता है 12,500। 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20% होता है, तो वो कितना होता है 1 लाख। मतलब अप टू 10 लाख आपको टैक्स कितना भरना पड़ता है, 1,12,000। ये याद रखने का, मैंने 40 लाख बोला तो अभी अबाउट 10 लाख जो भी है उसका एट द रेट ऑफ 30%, तो 30 लाख बचता है। 30 लाख का 30% 9 लाख होता है, तो टोटल कितना हुआ 10,12,500। लेकिन अभी क्या लगना बाकी है, सरचार्ज और शेष। सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख के नीचे है, शेष तो लगता ही है, हेल्थ एंड एजुकेशन शेष एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है ना। जो भी अमाउंट आएगी 4% ऐड करके ये अमाउंट कितना आता है, 10,53,000। ये इतना इसको टैक्स लगेगा। इनका टीडीएस कितना कटा है, 1 लाख, तो इनको बैलेंस कितना भरना है अभी, 9,53,000। ये बोलते हैं आईटीआर गया मराने, भरना ही नहीं है, भरना ही नहीं है इनको, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर लेकिन वो आपका टीडीएस है 1 लाख रुपीज का, वो बोलता है रहने दे, डोनेशन किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट शुड बी वेरी हैप्पी। जो बिल्डर है इनके पास मांग रहा है आपका पैन दे दो, नहीं देंगे। बिल्डर बोलता है नहीं दोगे तो फिर हमको 206 AA लगाना पड़ेगा, 206 AA लगाना पड़ेगा। तो जहां पे 1% पे डीडीए डिडक्ट होना था वहां पे कितने पे होगा, 20% पे। ये बोल रहा है 20% भी काट लो, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा, काट लो चलो। ऐसे बहुत सारे लोग थे, गवर्नमेंट ने बोला इनको 20% से भी ज्यादा पनिश करना चाहिए, थोड़ा मजा आना चाहिए इनको, ऐसा ऐसा फील होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और पैन देना चालू कर देना चाहिए। नॉन फाइलर को थोड़ा और पनिश करो, ठीक है ना, थोड़ा और पनिश करो। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करना चालू किया, गवर्नमेंट ने बोला पहले तो नॉन फाइलर, ये नॉन फाइलर है, समझ में आ रहा है नॉन फाइलर को से डिफाइन किया। देखो ये नॉन फाइलर है कि नहीं है, इनको 206 AA नहीं लगेगा। अब पर्सन, पहले पर्सन है क्या, इंडिविजुअल थे ना, पर्सन है। नॉट फर्निश द रिटर्न, क्या ये रिटर्न भर रहे हैं, नहीं भर रहे, ठीक है ना। तो तुम लोग भी तो नॉन फाइलर हो गए। हाँ, तुम्हारा इनकम नहीं, तुम्हारा टीडीएस ही नहीं कट होता। और टीडीएस क्यों नहीं कट हो रहा है, क्योंकि टीडीएस कट होने के लिए इनकम कमाना पड़ता है, ठीक है ना।
तो विश्वकर्मा फैब्रिकेटर के जो प्रोप्राइटर है मिस्टर विश्वकर्मा, उनको नॉन फाइलर बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द return of income for the assessment year relevant to previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing the return under 139(1) has expired। मतलब क्या बताना चाहता है कि लास्ट ईयर का रिटर्न उन्होंने नहीं भरा और उसका टाइम खत्म हो चुका है, मतलब अब रिटर्न नहीं भर सकते। और एंड मतलब और भी एक कंडीशन क्या है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड जो था उस साल में वो 50,000 या मोर था। तो मेरे एग्जांपल में उनका टीडीएस कितना था लास्ट ईयर का? 1 लाख था। तो इनको नॉन फाइलर बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। तो नॉन फाइलर मतलब खाली वो नहीं जिसका आईटीआर नहीं भरता है, नॉन फाइलर मतलब वो कि उसका टीडीएस भी 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे हम? नॉन फाइलर। और ये नॉन फाइलर हरामखोर ने अगर टैक्स पैन नहीं दिया तो गवर्नमेंट डबल ए नहीं लगाता, फिर अब क्या लगाएगा गवर्नमेंट? ए भी लगाएगा। बताओ ए बी डबल ए से थोड़ा हार्श होना चाहिए कि थोड़ा इजी होना चाहिए? हार्श होना चाहिए। तो हार्श कैसे किया उन्होंने? उन्होंने बोला ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेवेंट एक्ट। ओहो, डबल कर दो टीडीएस का रेट, क्या कर दो? डबल कर दो। अब 1% का डबल करेंगे तो कितना होगा? लेकिन 30% का डबल करेंगे तो कितना होगा? ओहो, तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, क्या रे सागर, अगर क्रिप्टो करेंसी में डील करता है और अगर नॉन फाइलर है तो टीडीएस का रेट कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। कोई ड्रीम 11 में गेम खेल रहा है और उसका टीडीएस 50,000 के ऊपर था लास्ट ईयर का, तो इसका हिस्सा 60% पे डिडक्ट होगा। टालिया। दूसरा, ट्वाइस द रेट इन द फोर्स, मतलब जो एप्लीकेबल टैक्स के रेट है उसको भी क्या कर दो? डबल कर दो। और मिनिमम कितना कर दो? 5%, मिनिमम 5%। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? जहां पे रेट 1% है, जहां पे टैक्स लगने ही नहीं वाला था, तो 1% का डबल करेंगे तो कितना होता है? 2% ही होता है ना। फिर भी मिनिमम कितना कटेगा? 5%। मुझे तो नहीं लगता 5% तक आपको जाने की जरूरत है। ऊपर वाली और इन तीनों में का विच एवर इज हायर है ना, तो हायर में ही जाओगे आप मोस्टली। ठीक है ना? तो अगर मरना होगा तो नॉन फाइलर बनो। इन सारे सेक्शंस की वजह से आपको समझ रहा है ना क्या हो रहा है? मार्केट में फाइलर बढ़ेंगे क्या? हाँ, फाइलर बढ़ेंगे तो अपना धंधा बढ़ेगा क्या? बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका अवेयरनेस क्रिएट करने का? आर्टिकल्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं 5% लिख रहा हूं। दूसरा, ट्वाइस, ठीक है ना, ट्वाइस टीडीएस रेट, टीडीएस रेट का डबल। तीसरा, ट्वाइस रेट इन फोर्स विच एवर इज हायर। क्या आपको पेयर की बातें समझ में आई? पेई की, सॉरी, पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई? बोलो। आई? पक्का आई? बाप रे, ये लोग को फटाफट, इतना फटाफट समझेगा तो सिया अपनी टीम बहुत आगे चलेगी। चाय चाहिए तो सिया वो उसको ढूंढना पड़ेगा, विकास को। ब्लैक टी चाहिए तो बोल दो। अरे कोई दे दो उसको, पैसे दे दो यार। विकास सुनना, दूध लेकर चाय बनाना जरा सबके लिए। विचार, देखो आर्टिकल्स की कितनी सेवा करनी पड़ती है। अब आप लोगों ने यहां नहीं पूछा, मुझे पूछो। मैंने पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या बताई है? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिडक्ट करने का। पूछो, सवाल पूछो। पहला कंप्लायंस का सवाल पूछो कि कब डिडक्ट करने का। पूछो ना, अरे सवाल तुमको आने चाहिए, तुम तो गधे के जैसे बैठे हो। रोज का रोज डिडक्ट करने का? आज फैकल्टी का लेक्चर हुआ, आज का आज मेरा डिडक्ट करोगे? नहीं। आज एम्प्लॉय जॉब पर आया, शाम को जाने से पहले डिडक्ट करके जाएगा घर पे। तो पहला पूछो तो सही कि कब डिडक्ट करने का। तुम्हारे हिसाब से कब करना चाहिए? पेमेंट बेसिस पे करना चाहिए।
अगर पेमेंट बेसिस पे उन्होंने बोल दिया होता, इन्होंने बोल दिया था कि जब पेमेंट करना है तब डिडक्ट करो, तो ये चोर लोग क्या करते, पेमेंट ही डिले करवा देते ना, पेमेंट ही बोलते हैं, या पेमेंट कैश में ले लेते, पेमेंट किस में ले लेते, कैश में ले लेते, या पेमेंट ही डिले करके दिखाते, कुछ तो जोल करते लेट डिडक्ट करने के लिए कि पेमेंट इस महीने में नहीं किया, पेमेंट अगले महीने में किया। सब एक तो पेमेंट है, दूसरा कुछ कुछ लोगों के तो पेमेंट ही नहीं होते। अरे कुछ लोग तो अरे मैंने बिल दिया, मुझको पेमेंट तो करने दो, पेमेंट ही नहीं कर रहा है वो, तो टीडीएस ही नहीं काटेगा ना। लेकिन इनकम तो अर्न किया मैंने, इनकम टैक्स इनकम रिसीव्ड के ऊपर नहीं है, इनकम टैक्स का चार्ज इनकम अर्न के ऊपर है। अरे भाई जितना आपने बिलिंग किया, जीएसटी किसके ऊपर भरते हो आप, पैसा रिसीव पे भरते हो कि पैसा बिलिंग के रेट पे भरते हो? बिलिंग मतलब आपका इनकम ना, अक्रूवल, विनायक नंतर त्या लोकांना अक्रूवल शिकव कधीतरी, अक्रूवल करके कुछ होता है मर्केंटाइल सिस्टम। हाँ, तो पैसा रिसीव हुआ तो इनकम नहीं होता, बिल रेज हुआ तो इनकम होता है। तो मैंने बिल रेज किया तो सामने वाले ने एंट्री मारी होगी ना, पेएबल की एंट्री मारी होगी, तो टीडीएस या तो अक्रूवल पे कटता है या तो पेमेंट पे कटता है, विच एवर इज अर्लियर पे कटता है। जो मेन सेक्शन है उसका टीडीएस कौन से बेसिस पे कटता है, अक्रूड या पेड, विच एवर इज अर्लियर। उनको उन्होंने लिखा है भाषा में, इनके भाषा में, डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ क्रेडिट मतलब एंट्री मारना पड़ेगा ना, अरे मैं उनके बुक में लाइबिलिटी होता है ना, तो मैं क्रेडिटर, थैंक्स विनायक सर, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर है, लेकिन सैलरी में उन्होंने बोला डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ ये अपना पेमेंट विच इज अर्लियर मत करो, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करो। तो किसी किसी सेक्शन में पेमेंट बेसिस पे होता है, तो आपको वो सेक्शन याद रखने, यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ सिलेक्टेड सेक्शन है जिसमें पेमेंट लिखा होता है, बाकी जो मेन सेक्शन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, रेंट के, कमीशंस के, ठीक है ना, वो मेन सेक्शन जो हमारे है उसमें डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर ऐसे लैंग्वेज लिखा गया है। मैं आपको टेबल आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं, वो टेबल में हमारे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला तो मैंने सवाल क्या पूछा आपको, डिडक्ट करना चाहिए, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिडक्ट करना चाहिए। फिर आपने क्या पूछना चाहिए था, कब डिडक्ट करना चाहिए, तो मैंने उसका जवाब क्या दिया, डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। फिर तीसरा सवाल पूछो, सवाल तो पूछो, नहीं इसी पॉइंट पे रहो, पॉइंट नंबर 1 पे ही रहो। डिडक्ट कैसे करते हैं काले, डिडक्ट कैसे करते हैं, डिडक्ट माइनस करते हैं 1 लाख देना था, 10,000 माइनस करना, हो गया डिडक्ट, पूरा पैसा नहीं देना, ऐसे करते, चलो वो भी बता दिया। और कितना डिडक्ट करना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए। पहला, कितना डिडक्ट करने से पहले किस आइटम, क्या आपका ये सवाल उठना चाहिए था कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जितने आइटम दिखते हैं सबका डिडक्ट करूं। अब इसको आपने चाय विकास को भेजा आपने चाय लाने, दूध लाने के लिए, अब क्या उसका टीडीएस काट कर आएगा उधर, क्योंकि ये पेयर हो गया ना, और वो पे ही हो गया। स्टेशनरी करने जाओगे तो क्या स्टेशनरी वाले का टीडीएस डिडक्ट कर दोगे, वड़ा पाव खाने गए वड़ा पाव वाले का टीडीएस डिडक्ट कर दोगे, ऑटो से उतर के ऑटो वाले भैया का टीडीएस डिडक्ट कर दोगे, अरे किसका किसका काटोगे पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ऑल पेमेंट के ऊपर टीडीएस लगता है, तो जो पेमेंट मेंशन किए गए हैं, मैंने क्या बोला, जो पेमेंट्स मेंशन किए गए, तो आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा। पहला आपको याद रखना पड़ेगा सेक्शन, सेक्शन तो ऐसे में लिख रहा हूं, ऐसे तो सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा ना। तो पहले तो आपको सेक्शन याद रखना है, मतलब 192 बोला तो सैलरी, 194C बोला तो कॉन्ट्रैक्ट, 194H बोला तो कमीशन, 194I बोला तो रेंट, तो ऐसे सेक्शन नंबर याद हो जाएगा तो नसीब है मेरा, ठीक है ना, मुझे पुण्य ही मिल जाएगा। दूसरा आपको चीज याद रखनी पड़ती है, नटूरे ऑफ पेमेंट, क्या याद रखना पड़ता है नटूरे ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, अरे हाँ, तो नटूरे ऑफ पेमेंट याद रखो, मतलब सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, कमीशन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल पे, तो कहां आप क्या याद रखोगे, कहां डिडक्ट होता है वो याद रखोगे कि कहां डिडक्ट नहीं होता वो याद रखोगे, कहां नहीं होता उसके लिस्ट की तेरे पापा ने बनाई है
बोलता है कहाँ नहीं होता वो याद रखूंगा। हाँ, कहाँ होता है वो याद रखने का, क्योंकि कहाँ होता है वो लिखा है। टीडीएस का जो लॉ है वो सिलेक्टिव लॉ है। कौन सा लॉ है? सिलेक्टिव लॉ है। सिलेक्टिव लॉ मतलब जो जो सेक्शन में कवर्ड है उसी के ऊपर टीडीएस लगता है, अलग से अपने हिसाब से टीडीएस का सेक्शन ना बनाओ, ठीक है ना। तो आपको दूसरा आइटम क्या याद पहला आइटम तो क्या याद रखना पड़ेगा? सेक्शन नंबर, ठीक है ना। दूसरा क्या याद रखना पड़ेगा? नटूरे ऑफ पेमेंट। तीसरा आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, प्रोफेशनल फी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, रेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। मैंने बोला लेकिन हमारी बिल्डिंग का जो आप रेंट भरते हो, ठीक है ना, मान लो ऊपर के बिल्डिंग का रेंट है अपना 18,000 रुपया या 20,000 रुपया भी पकड़ लेते, 20,000 रुपीज का रेंट है हमारा, ठीक है ना। 20,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना होता है? 2,40,000 होता है। एलिट गुरुकुल का अकाउंटिंग कौन करता है? सब लोग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो एलिट गुरुकुल में आपने हमारे ओनर का टीडीएस डिडक्ट किया क्या? नहीं किया। क्यों? करना चाहिए था ना, पेयर है, पेई है, सेक्शन है। सर हर सेक्शन में क्या होता है? एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट आपको सिखाता है यस टीडीएस या नो टीडीएस। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या सिखाता है? टीडीएस लगेगा या टीडीएस नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बोला? 2,40,194 आय का थ्रेशोल्ड लिमिट है। मैंने क्या बोला? 2,40,194 आय बोले तो रेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो किसी का अगर रेंट पेमेंट, हम जिसको रेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो लैंडलॉर्ड है, हमारे जो ओनर है, अगर उन्होंने हमसे 240 के नीचे कमाया एक साल में, तो टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और मान लो अगर 3 लाख का पेमेंट होता तो लगेगा। तो कितने पे लगेगा? सवाल समझा मैंने क्या पूछा? कितने पे लगेगा? बोलो। अरे यार डर क्यों रहे हो? या तो गलत आंसर दोगे या तो सही आंसर दोगे। 60 पे लगना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता। थ्रेशोल्ड लिमिट ट्रिगर पॉइंट गन में होता ना, ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर होगा या नहीं होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट का काम उतना ही है। 240 कोई एग्जम्पशन नहीं है। ऐसा है क्या 240 उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा? टैक्सेबल तो पूरा 3 ही होगा ना। तो इनकम के साथ टीडीएस अमाउंट मैच होना चाहिए। तो इसलिए टैक्स जब लगेगा, टीडीएस जब लगेगा तो पूरे पे लगेगा। याद रखो, थ्रेशोल्ड लिमिट टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा बताता है। अगर लग गया तो पूरे पे लगेगा। इसके मैं आपको 2 एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक तो आपको याद, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब टाइम आएगा तब पढ़ाऊंगा। वो एक्सेप्शनली सेक्शंस है। लेकिन पहले तो आप ये इतना समझो, पहले बेसिक तो समझो कि टीडीएस जब लगता है तो पूरे अमाउंट के ऊपर लगता है। ओके, तो प्रोफेशनल फी का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? प्रोफेशनल फी का 30,000, 194 जे में प्रोफेशनल फी कवर होता है। उसका थ्रेशोल्ड कितना है? 30,000। 30,000 के ऊपर अगर पे किया तो 35,000 का पेमेंट किया तो 35,000 का 10% कटेगा। कितना कटेगा? 10%। तो मैंने परसेंटेज बोला, मतलब अभी थ्रेशोल्ड के बाद आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आरओटी, आरोही नहीं, आरओटी, रेट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ टीडीएस कि बाबा रेट क्या होगा। तो बताओ जल्दी जल्दी, 194C का रेट क्या है? 1% या 2%। सैलरी का रेट क्या है? सैलरी में कोई रेट नहीं है। सैलरी एक्चुअल टैक्स रेट के ऊपर करता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स हम बोलते हैं, जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है उसके ऊपर करता है। देन आगे चलो, 194H, एच बोले तो कमीशन। कमीशन का कितना होता है देश में रेट? 5% रेट होता है। अभी याद रखो, फिर डिटेल में सेक्शन बताऊंगा तो फिर से एक बार बताऊंगा। लेकिन मैंने बोला ना आपको 15 टाइम्स पढ़ना होता है, थोड़ा 10-12 बार तो मैं ही बता देता हूं आपको, ठीक है ना। 194J प्रोफेशनल्स का कितना होता है? 10%। अच्छा 10% ना मोस्ट रिपीटेटिव रेट है, बार बार जो रिपीट होता है वो क्या है? 10% है। तो आपको उन सेक्शंस में ज्यादा ताकत लगानी होती है जहां पे 10 नहीं है। तो 194A मैंने आपको बताया नहीं, इंटरेस्ट का टीडीएस रेट नहीं बताया देश में, गेस करो। इंटरेस्ट का रेट ऑफ टीडीएस मैंने नहीं बताया, तो गेस करो। 10%। अरे हराम को अभी तो बताया ना कि मोस्ट रिपीटेटिव रेट क्या होता है? 10% होता है। लेकिन आपको ताकत कहां पे लगानी है? जहां पे 10 नहीं है। तो 10 नहीं है, ऐसे बहुत कम सेक्शंस है।
बाकी मेजोरिटी सेक्शंस में क्या होता है 10% होता है। तो रेट ऑफ टीडीएस याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। और अभी पांचवा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, उसको मैं स्पेशल रिमार्क बोलता हूं। एक्चुअली क्या बोलता हूं मैं यहाँ पे, स्पेशल रिमार्क। मतलब हर सेक्शन के क्या होते हैं, स्पेशल रिमार्क होते हैं। उसमें का एक जो स्पेशल रिमार्क होता है ना, एक स्पेशल रिमार्क होता है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन लिखने से अच्छा है मैं लिखता हूं नॉन एप्लीकेबिलिटी। बहुत सारे सेक्शंस में गवर्नमेंट ने बोल के रखा है यहाँ पे टीडीएस मत काटो, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना, यहाँ पे टीडीएस मत काटो। और कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस है, मतलब ऐसे 3 सेक्शन है एक्चुअली, जहां पे टीडीएस कट करने के लिए आपके पास एक नंबर होना बहुत जरूरी होता है। मैंने बताया था जो डिडक्टर है उसका एक नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, टीडी कैन नंबर होता है। टीडी कैन का फुल फॉर्म क्या, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं, टैन, ठीक है ना। तो जिनका टैन होता है वही टीडीएस डिडक्ट करके स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पूरे इनकम टैक्स में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शंस है जहां पे टैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसा सेक्शन है 194 IA, 194 IB एंड 194 M। आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन सर ऐसे कोई सेक्शंस है जहां पे टैन की जरूरत नहीं है, टैन नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। टैन जो होता है ना वो नॉट एप्लीकेबल होता है। तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ऐसे प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भैया यूजुअली टीडीएस फुल अमाउंट पे डिडक्ट होता है। मैंने क्या बताया, यूजुअली टीडीएस फुल अमाउंट पे डिडक्ट होता है। लेकिन ऐसे कोई सेक्शंस है जहां पे टीडीएस ओनली एक्सेस अमाउंट पे डिडक्ट होता है। ओके, तो ऐसे आपको स्पेशल पॉइंट आगे जाके हर सेक्शन का कोई एक स्पेशल पॉइंट होता है, वो याद रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल देने के लिए, मैंने अभी कार लोन लिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक से। मैंने राम पाटिल ने कार लोन लिया है आईसीआईसीआई बैंक से। तो मैं पेयर हूं कि पेई हूं, मैं पेयर हूं कि पेई हूं, इंटरेस्ट है ना यहाँ पे। मैं बैंक को क्या दूंगा, तो मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा ना। मतलब बैंक ने मुझको लोन दिया, बैंक इंटरेस्ट भी मुझको देगा क्या, नहीं। तो मैंने बैंक से लोन लिया है तो अभी रिपेमेंट होगा। तो मैं कौन, फिर से पूछ रहा हूं, तो मैं पेयर हूं ना। कौन कमा रहा है, हम दोनों के ट्रांजेक्शन में कमा कौन रहा है, बैंक इनकम कमा रहा है। कौन से इनकम का नाम क्या है, इनकम का इंटरेस्ट कमा रहा है। तो राम पाटिल बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो मैं कौन बन गया, पेयर। बैंक कौन बन गई, पेई। कौन सा सेक्शन लगेगा, 194A। ए कौन सा है, इंटरेस्ट का है। रेट ऑफ टीडीएस कितना है, 10% है। थ्रेशोल्ड लिमिट 5000 है, क्या है 5000 है। बैंक से जब मुझको मिलता है तो 40,000 है, लेकिन मेरे से जब बैंक को जाता है नॉर्मल जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 5000 है, वो जाने दो, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। मतलब क्या बैंक ऐसा बोलेगा, सुनो जी राम जी, हमें ना आईसीआईसीआई बैंक जो है ना उसके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो कहीं टैक्स भरेगी या नहीं भरेगी, लेकिन आपके ऊपर हमें बैंक से ज्यादा भरोसा है। आप एक काम करो, बैंक का टीडीएस काट के हमें भर दो। ऐसा होगा क्या, देश में बोरोवर कितने होंगे, बैंक तो एक ही है आईसीआईसीआई बैंक, बोरोवर तो लाखों होंगे। तो लाखों लोग टीडीएस काटेंगे क्या आईसीआईसीआई बैंक का, नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 194A में नॉन एप्लीकेबिलिटी में क्या बोला कि अगर पेई क्या है, बैंक है, तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। हेलो, ओके ओके। तो बैंक अगर पेई है, ठीक है ना, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो उल्टा करते हैं, मैंने बैंक में एफडी रखा, मैंने बैंक में क्या रखा, एफडी फिक्स डिपॉजिट रखा। तो अभी बैंक क्या बन जाएगी, पेयर, और मैं क्या बन जाऊंगा, पेई। मतलब बैंक मुझको पे करेगा इंटरेस्ट अभी, तो बैंक मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को ये जो डिपॉजिटर्स है देश भर में जो फिक्स डिपॉजिट रखते हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो उनके इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर वो इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर है, कितने हजार के ऊपर है, 40,000 के ऊपर है, और सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 के ऊपर है। ऐसे कुछ लिमिट लगाए उन्होंने। लेकिन फिर आप लोग भी तो इंटरेस्ट कमाते हो, सेविंग बैंक आपका भी है, आपकी फिक्स डिपॉजिट नहीं होंगे। आर्टिकल्स को सूट नहीं करता बैंक में फिक्स डिपॉजिट होना, ठीक है ना। लेकिन मान लो सेविंग बैंक अकाउंट तो होगा ही, लेकिन आप कितना कमाते हो सेविंग बैंक में,
8 रुपया, 12 रुपया, 23 रुपया इंटरेस्ट कमाते रहोगे, उसके ऊपर बैंक ने टीडीएस कभी काटा नहीं। अच्छा, ये 1-2 लाख भी कमाओगे ना आप सेविंग बैंक के ऊपर, तभी भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि 194A में लिखा है सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं लगता। मैंने ये बोला क्या टैक्स नहीं लगेगा? टैक्स लगेगा। क्या नहीं कटता? टीडीएस नहीं कटता। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने अच्छा खासा बैंक में इंटरेस्ट कमाया हुआ है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखा के टैक्स भरना, क्योंकि उसके ऊपर टीडीएस भी नहीं कटा हुआ है। एफडी के ऊपर का इंटरेस्ट पकड़ा जाता है क्योंकि वो टीआईएस एआईएस में या 26A में दिखेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट पोर्टल के पास नहीं होता, वो आप लोगों को होता है तो अच्छी बात है, रिपोर्टिंग हुई रहेगी, लेकिन पकड़ने के चांसेस कम है क्योंकि उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता। ठीक है ना? तो आप लोगों को इंटरेस्ट वहां पे जरा कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको 5 पॉइंट पढ़ने हैं हर सेक्शन में। कितने पॉइंट पढ़ने हैं? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? सेक्शन का नंबर। दूसरा क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ पेमेंट। तीसरा क्या पढ़ना है? थ्रेशोल्ड लिमिट। चौथा क्या पढ़ना है? रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टीडीएस। और पांचवा पॉइंट क्या होगा? स्पेशल पॉइंट। हर सेक्शन का अपना क्या होता है? एक स्पेशल पॉइंट होता है। ठीक है ना? जैसे एक स्पेशल पॉइंट 194I का बताता हूं, 2,40,000 मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट बताया, वो पर को ओनर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पर को ओनर। मतलब अगर यही प्रॉपर्टी पकड़ लो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे है, और हस्बैंड को मैंने 2 लाख रुपए का रेंट दिया, वाइफ को 2 लाख रुपए का रेंट दिया, तो मैंने तो टोटल 4 लाख का रेंट दिया, तो 2,40,000 के ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी टीडीएस नहीं लगेगा क्योंकि पर को ओनर 240 के नीचे है। तो पर पेयर नहीं देखना होता है, पर पे ही देखना होता है, पर को ओनर देखना होता है। मैंने क्या बोला समझा? वो उसका स्पेशल पॉइंट है उस सेक्शन का। 194I का वो एक स्पेशल पॉइंट है। सर हमको कैसे पता चलेगा स्पेशल पॉइंट? डेफिनेटली आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। मैं अभी सेक्शन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको खाली क्या पढ़ा रहा हूं? कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ा रहा हूं। तो पहला मैंने क्या बताया आपको कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्या? डिडक्ट करो। डिडक्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना समझ में आया? डिडक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको? डिडक्ट के लिए बोलो, डिडक्ट के लिए क्या पढ़ना है? सेक्शन। दूसरा क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ पेमेंट। तीसरा क्या पढ़ना है? थ्रेशोल्ड लिमिट। चौथा क्या पढ़ना है? रेट ऑफ टीडीएस। ठीक है ना? और एक स्पेशल पॉइंट में और एक पॉइंट ऐड करके रख सकते हो आप, टीओडी, टाइम ऑफ डिडक्शन। टाइम ऑफ डिडक्शन मैंने यूजुअली टाइम ऑफ डिडक्शन क्या पढ़ाया आपको? डेट ऑफ टाइम ऑफ डिडक्शन में मैंने क्या पढ़ा? डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शनल, ठीक है ना, एक्सेप्शंस में क्या लग जाता है? डेट ऑफ पेमेंट। कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पे क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ पेमेंट पे ही कटता है। ठीक है ना? जब पेमेंट करोगे तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ द टीडीएस सेक्शंस यू आर सपोज टू लर्न। ओके, बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? अभी आप लोगों को पहला सवाल पूछना चाहिए, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछना चाहिए, और एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो ना, ये सवाल आना चाहिए आपके मन में। तो उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर में कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। पहले मैं आपको क्या कॉन्सिक्वेंस पढ़ाऊंगा? नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। लेक्चर क्लोज करने से पहले बता देता हूं, सबसे पहले तो डिसअलाउंस होता है पीजीबीपी में। जो खर्चा आपने किया है वो क्या होगा? डिसअलाउड होगा। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया होगा तो 100% डिसअलाउड, रेसिडेंट को पेमेंट किया होगा तो 30% डिसअलाउड। तो पहला तो क्या बोलते हैं, नॉन डिडक्शन का सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है कि आपको क्या लगेगा? डिसअलाउंस लगेगा। दूसरा, आपका नाम आएगा एआईडी में। जैसे अपने कॉलेज में नहीं होता था क्या ब्लैक लिस्ट, वैसे यहाँ पे एक इनकम टैक्स का ब्लैक लिस्ट क्या है? एआईडी का। बोलो अच्छा है क्या इसके ब्लैक लिस्ट में आना? जी, इनके ब्लैक लिस्ट में इनसे जितना दूर रहोगे वही अच्छा है। ठीक है ना? तो इनके आपको एआईडी बोला जाएगा। सर एआईडी बोलेंगे ना, उस एआईडी बोल के क्या ही कर लेंगे? क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे आपके ऊपर कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो कितना इंटरेस्ट लगता है? 1% पर मंथ। 1% पर मंथ। तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि मंथली पेमेंट करना है ना। पेमेंट कैसे करना था? मंथली। तो टीडीएस भी कैसे लगेगा, इंटरेस्ट भी कैसे लगेगा यहाँ पे? मंथली। तो कुछ कॉन्सिक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? और बाद में अगले लेक्चर में मुझे याद दिला देना, जो पेज नंबर मैं अभी लेने वाला था लेकिन ऊपर क्लाइंट आए हैं, ठीक है ना, पेज नंबर 87 पे एक चार्ट है, बहुत बड़ा चार्ट है, वो मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है ना? पेज नंबर 87 पे ये चार्ट है। ठीक है ना? तो टीडीएस का अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है, कंप्लायंस सीखना है टीडीएस का, तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये सिंगल पेज का प्रिंट लगा के जो भी हमारे ऑफिस में टीडीएस का काम करते हैं,
ये प्रिंट उनके फ्रंट डेस्क पे होना चाहिए। पेज नंबर 87 में सीए इंटर के मॉड्यूल में है, इसका प्रिंट आप ले लोगे तो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर के पहले मेक श्योर करो विश्वनाथ सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये पढ़ाने वाला हूँ टेबल, तो ये टेबल अगर आपके पास होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रिंट लेके सब लोग रेडी रखो अपने पास। ऑलराइट, क्लाइंट आए हुए तो आई हैव टू स्टॉप टुडे हियर ओनली। थैंक यू फॉर द डे।